Hello UPSC aspirants, hope you're doing well. Now this video is for the people who are targeting prelims 2025. अगर आप UPSC का prelims 2025 को target कर रहे हैं, so you need to have a very point wise approach to crack the exam. But I'm only focusing on subject called economics and social issues and government scheme. Now this is an area which covers more than 20% of the syllabus on an average. अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे और इवन इफ वी गो बिफोर दैट ट्रेंड, फॉर एग्जांपल 2011 onwards, one thing that you'll find very common is that on an average आपके 20-25 questions आते हैं हर साल. Minimum 20 questions would be there that you can expect. Now question comes that what should be done. Now there are two parts of my video. The first part is where I'll be analyzing the PYQs और इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, but at least एक basic understanding is very important for people who are targeting. Then the second part of the video would be where I'll be discussing what are the sources that you need to follow and how do you make sure that you score well in this area. Now first of all, let's see what is the expectation of UPSC. UPSC आपसे क्या चाहता है? UPSC wants you to know, understand India's economy and apply the basic concepts of economy in Indian context as well as अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो वर्ल्ड इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वेनेजुला क्राइसिस और फॉर दैट मैटर व्हाट हैपेंस इन अमेरिकन मार्केट एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी. These are areas which again has to be understood. If you try to follow a trend and approach, एक चीज बहुत बेसिक है, conceptually you have to be sound. That means static part strong होना चाहिए. Now for that static part strong, you need to follow some sources which I'll be discussing. First of all, let's discuss the questions that have been asked. Now, if you see the last few years trend, एक चीज simple है that there are some common topics where frequency of question is very high. कुछ ऐसे एरियाज है जहां से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं. वन एरिया इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द सेकंड एरिया इज एग्रीकल्चर, थर्ड एरिया इज एक्सटर्नल सेक्टर एंड फोर्थ एरिया जो नया ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है दैट इज कैपिटल मार्केट, वेयर यूपीएससी का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है. नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाई मोर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम कैपिटल मार्केट. द रीजन इज दैट कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ये सारे ऐसे एरियाज है जहां क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले कम पूछे हैं. सो द क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सेक्शंस हैव एग्जॉस्टेड, तो नए एरियाज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. However, if you look at the other topics, उनका weightage थोड़ा कम है, but still we can't take the chances. We have to be sound in that as well. Now let's see the topics. So capital market is one area where on an average 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं. Second area is agriculture. Again 3 to 4 question every area UPSC is asking. Agriculture थोड़ा converge भी होता है geography के syllabus से. So you might see, but agriculture from the economy point of view, you can say the PDS system, for that matter MSP policy of the government of India या land reform हो सकता है, or for that matter you can also look at the questions which are routinely being asked in terms of how the economy will do in future. And agriculture से government scheme पे बहुत सवाल आते हैं in the last few years. So again this is an area where you can expect questions again. The next area is called external sector BOP, यानी आपके world trade की बात हो रही है. Trend on the economy पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं. So always go through the trend of the data. For example, how our export sector is doing, how our import sector is doing, हमारा total trade कैसे impact हो रहा है, export policy क्या है, उसके focus approach एक क्या है. Then how the India is changing in terms of investment policy, FDI policy, balance of payment, उसके जो concepts होंगे वहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं. And routinely the questions are being asked. One area again which recently UPSC is more focusing is how the external factors are impacting India's economy. यानी US में जो हो रहा है वो हमारे बॉन्ड यील्ड को कैसे, हमारी बॉन्ड यील्ड को अमेरिकन इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और फॉर दैट मैटर हाउ in Indian economy getting impacted by what is happening in the European market and other areas. So these are again, that means एक intertwined जो है आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी with respect to world economy, geopolitics, कैसे कैसे ये सब चीजें इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं. सो यू हैव टू सी अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच इन फॉलोइंग दैट. जो अगला टॉपिक है दैट इज द फिस्कल पॉलिसी. एंड फिस्कल पॉलिसी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल इन जनरल बजटिंग, टैक्सेशन, बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रूटीनली आस्क्ड फ्रॉम फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन से देखिए 16 फाइनेंस कमीशन अभी न्यूज में है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इफ यू सी द जनरल ट्रेंड, आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, द थीम्स आर रिपीटिंग एंड देयरबाय यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस जो नहीं सॉल्व हो सकते हैं मे बी करंट से हो सकते हैं, बट अगेन इन द स्टैटिक एंड द कॉन्सेप्चुअल पार्ट अप्लाइड सेक्शन में यू कैन स्कोर वेरी हाई इफ यू कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. सो मेक श्योर यू फॉलो दीज एरियाज. लो प्रायोरिटी एरियाज भी है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर यू गेट रेयर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर टॉपिक्स ऑफ द इकोनॉमी, which again I might say that हम इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे in the from the economic survey and the data of the government and budget.
आरबीआई की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखना जरूरी है, स्पेशली ऑन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, हाउ इंडिया इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड। तो ये सारे डेटा को अगर आप देखोगे तो यूपीएससी क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट द अप्रोच हैज टू बी सीन। अगला जो एरिया है वो है हाउ टू कवर द सोर्सेज, यानी किन सोर्सेज पे हम रिलाई करें। ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बी थरो इन योर स्टैटिक एरियाज। आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव द प्राइमरी सोर्सेज। सिलेबस को उठाइए, लिंक द सिलेबस एंड सी व्हाट आर द स्टैटिक एरियाज। नेचुरली यूपीएससी के सिलेबस से आपको बहुत कुछ मालूम नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन द प्रीलिम सिलेबस, बट मेन सिलेबस से काफी कुछ क्लैरिटी डेवलप हो जाती है। बट मेंस का जो सिलेबस है वहां से यूपीएससी प्रीलिम से क्वेश्चंस कम आते हैं। So naturally for that I'll have to make a new video how to decode the prelims का syllabus and what topics to follow there. Now इसके लिए हम अभी बात करेंगे, but let's talk about the sources first. So NCERT class 11th Indian Economic Development के limited chapters, total 7 chapters में जरूरी है, especially chapter 1, 2, 3, 4 unemployment, human capital ही आपको फॉलो करना है। रिमेनिंग चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कमिंग टू द 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन थोड़ा टेक्निकल है, उसमें बहुत सारे आपको डायग्राम्स और फॉर्मूलाज मिलते हैं। नो, फोकस ओनली ऑन द थ्योरी पार्ट, द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। एंड हियर इफ यू फील दैट ये किताब थोड़ी हैवी लग रही है, यू कैन इजिली स्विच टू तमिलनाडु बोर्ड क्लास 12th, जहां पे अगेन यू विल फाइंड द कॉमन टॉपिक्स और उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे अलग से एक डिटेल वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, दैट आई विल बी डूइंग इट। सो एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है। कॉन्सेप्चुअली स्टैटिक साउंड होना चाहिए आपका। If static is good, you will feel the difference in terms of outcome. Now coming to the next part, now what should be done in the current affair? Now current affair में conceptually अगर आप sound है, just follow the trends of the Indian economy vis-a-vis the world economy. Also see last 3-4 सवाल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. So in the last 2-3 years, 4 years, how economy is getting impacted by the external factors, the geopolitics, what is happening in other part of the world. हमारी आरबीआई की पॉलिसीज कैसे इंपैक्ट हो रही हैं, बैंकिंग सेक्टर कैसे इंपैक्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो न्यूज में, देयर वाज गोल्ड एनपीए, यानी गोल्ड लोन पे हाई एनपीएस हो रहे हैं। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज। सो एज अ एस्पिरेंट व्हाट यू नीड टू डू दैट बिफोर गोइंग एंड रीडिंग एवरीथिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच आर इन न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन एंड फोकस मोर ऑन दैट पार्ट। यहाँ पे आप स्टैटिक पार्ट के और डायनेमिक पार्ट को अलाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द how economy is getting impacted by bullion market or gold market, तो आपको उसको लिंक करना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए रिफॉर्म्स तो नहीं किए हैं बिकॉज न्यू गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड, सो मोर लेस सिलेबस विल रिमेन द सेम। द कंटेम्प्रेरी पार्ट का लिस्ट बना के आपको स्टैटिक से लिंक करना पड़ेगा। सो अगेन एज आई सेड, आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दिस सो दैट यू गेट अपडेटेड विद द न्यू ट्रेंड्स। सो फॉर नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वीडियो। आज ये वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। Just like the channel, subscribe to the channel and be regular and be consistent. God bless you. Take care. Bye-bye.